Students, I'm taking this class of yours, and today's topic is the geometries of the molecular orbitals. हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में भी मैंने अपलोड किया था, यही वाला किया था हमने, लेकिन मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो सडनली स्विच ऑफ होके आपको वो लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम। तो मैंने s ऑर्बिटल्स की when s orbital of one atom is combining with the or overlapping with the s orbital of other atom, then और sigma 1s या sigma 2s orbitals they are formed। तो वो आपको बताया था। तो एक बात और याद रखिए, when only there is addition of the overlap of atomic orbitals, then bonding molecular orbital will be formed, and when there is subtraction of the overlap of atomic orbitals, then there will be anti-bonding molecular orbital। तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। मीन्स जो हमने थ्योरी हम कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO थ्योरी जो हम ले रहे हैं ना। तो LCAO में जो हमने पॉइंट्स लिए थे वो था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मींस सिंपल एडिशन और द सब्ट्रैक्शन ऑफ द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो ये ओवरलैप करेंगे उनके जो उसका एडिशन या इफ देयर इज एडिशन ऑफ द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स we have bonding molecular orbital. If we have subtraction of the overlap of the atomic orbitals, we have anti-bonding molecular orbital. अभी भी मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा। Suppose we are taking the case of the p orbitals. P में there are 3 orbitals, px, py, pz। चाहे 2p ले, चाहे 3p ले, चाहे 4p ले, कोई भी ले, है ना। मीन्स एनर्जी लेवल हम किसी की बात नहीं कर रहे। इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट दी p और p सब सेल। सो p सब सेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, px, py, pz। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस 2px के अपर लोब में, इनको लोब कहते हैं, 2 लोब होते हैं, डम्बेल लाइक शेप होती है p सब सेल a ऑर्बिटल की। आप जानते हैं, पढ़ाएं, आपको शेप्स में भी बता देंगे फिर से। फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर में है शेप सबके एटॉमिक इनकी ऑर्बिटल्स की, तो वहां पे भी लेंगे हम। लेकिन फिलहाल ये देखिए, if this is the shape of the px orbital, clear? so 2 सेकंड सेल का है, इसलिए 2px में अपर लोब में पॉजिटिव चार्ज, लोअर चार्ज में लोअर लोब में नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही केस इसका सेकंड p और px ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड एटम। एक 2 एटम के आएंगे ना, मॉलिक्यूल कब बनेगा? when 2 atoms come closer to each other। so 2px of one atom and 2px of the 2 atom, second atom, when they come closer and there is addition of the overlap, यदि इनकी addition हो रही है, so overlap will be this, overlapping means there will be a region of overlap। ये बीच में ये और नीचे भी ये वाला overlap कर रहे हैं एक दूसरे पे, ये orbitals, इनका रीजन, एक का रीजन दूसरे के ऊपर आ गया है, ठीक है। so इसके वजह से, लेकिन addition of the overlaps में both the upper lobes they have positive charge, plus similarly the lower lobe have minus charge, clear? so as a result this will split into किसमें, this type of splitting will take place, that is upper part will be having positive charge and lower part will be having negative charge, clear? so this is pi 2px, similar lines पे 2py का होगा भाई, 2py orbital combined with 2py and pi 2py results। but for the anti-bonding molecular orbital, 2 pi star 2px और pi star 2py में देखिए एडिशन कैसे होती है। फिर से एडिशन नहीं, इस केस में जैसे मैंने कहा था, there will be subtraction of the overlap। so when 2px of the one atom come closer to this 2px of the other and there is subtraction of the overlap, माइनस साइन है बीच में। अभी माइनस साइन का मीन्स ये माइनस साइन सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर लोब में चला जाएगा, जिससे साइन विल गेट रिवर्स्ड।
plus will become minus and minus will become plus. Clear? So this is the case upon overlapping. Now first case positive charge एक लोब में, दूसरे में नेगेटिव, जैसा था है ना फर्स्ट में केस में. लेकिन सेकंड केस में क्योंकि माइनस साइन अंदर एंटर किया, सो नाउ दिस अपर लोब having minus sign and lower lobe having plus sign. So this type of overlapping, or you can say subtraction of the overlaps, result in the splitting of the in this type of molecular orbital. This is pi star 2px. Splitting हो गया किसमें में, and there is a plane not called nodal plane region where probability of finding electron is 0. There will be no probability of finding electron in this region. So this is the case. Now अच्छा इसमें फर्स्ट अपर लोब में फर्स्ट पार्ट में there will be positive charge and in the lower part there will be negative charge, and in the second case there will be minus charge in the upper lobe and positive charge in the lower lobe. ठीक है, this is pi star 2px. Similarly pi star 2py will also have the same geometry. इसी तरह का केस होगा भाई. ठीक है, pi star 2py का भी. अब देखते हैं, ये था भाई हमारे पास इनकी ज्योमेट्री. देखिए जरा, आप कहेंगे एंटीबॉडी और ये वाले, इसमें दिस इज these two orbitals, that is pi 2px, pi 2py, ये pi star 2px and pi star 2py, they are symmetrical about the molecular axis. Molecular axis के along ये symmetrical होते हैं. Symmetrical means if we rotate these orbitals through 180 degree, क्लियर, सॉरी नॉन सिमेट्रिकल होंगे, एंटी सिमेट्रिक जिसको कहते हैं. सिमेट्रिकल होंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई चेंज नहीं आनी चाहिए उसकी ऑर्बिटल के अंदर. क्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. इफ देयर इज चेंज देन इट इज एंटी सिमेट्रिक. ठीक है, असिमेट्रिक या जो भी बोले, तो उससे उनके हमारे पास देखिए जरा कैसे केस है. इफ दिस इज द पाई 2px ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई 2px ऑर्बिटल में यदि हम इसको 180 डिग्री रोटेट करें, पलट दें हाफ, आप जानते हैं सर्कल में होते हैं 360 डिग्री, लेकिन हम हाफ पलटे 180 डिग्री पे, देन दिस पार्ट, दिस लोब गोज डाउन एंड दिस लोब गोज अप. ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला लोब नीचे आ जाएगा. इससे क्या होगा, नीचे वाले लोब में है माइनस साइन, तो वो चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा प्लस साइन. तो पहले केस में ऊपर वाले लोब में प्लस साइन था और नीचे वाले लोब में माइनस साइन था. सो मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज असिमेट्रिकल. ठीक है, सो सिमिलर इज द केस इन दिस केस. जब आप इसको देखोगे, इसको भी रोटेट करोगे तो यहां भी ऐसा ही होगा. यहां पहले लोब के ऊपर के वाले लोब में, पहले पार्ट में ऊपर के लोब में प्लस और इधर राइट हैंड साइड में माइनस था. ऐसे नीचे वाले लोब में माइनस लेफ्ट हैंड साइड में और इसमें प्लस था. अब इसको आप रोटेट करोगे 180 डिग्री, then it will get reversed. There will be minus sign in the upper lobe of the left hand side and plus sign in the right hand side. Similarly the case, left hand side के lower lobe में plus charge आओ और lower right hand side के वाले में minus charge. So उल्टा हो गया पहले वाले का केस, है ना. So this is also again not symmetrical about the molecular axis. If this is not symmetrical about the molecular axis, ये वाले बात जैसे हमने कहा था इसके, है ना. So यहां से हमारे पास, अच्छा इसके बेस पे हमने सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s या सिग्मा स्टार 1s, इनकी ज्योमेट्री जब हमने की थी तो उसमें जब हम, बिकॉज दैट ज्योमेट्री इज स्फेरिकल, ठीक है, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s या सिग्मा 2s 1s और सिग्मा स्टार 1s में, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस. मींस उसको जो स्फेरिकल है उसको आप 180 डिग्री पे घुमाओगे, देयर विल बी नो चेंज. ठीक है, इफ देयर इज नो चेंज दैट इज सिमेट्रिकल. क्लियर, सो दैट दीज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s या sigma 2s या sigma star 2s orbitals, molecular orbitals, they are symmetrical about the molecular axis, whereas these orbitals they are not symmetrical about the molecular axis. Clear? ये हमारे पास इनकी वही ज्योमेट्री थी. इसी बेस के ऊपर हम इनके
अब देखें कई हमारे पास क्या आया, स्टार्टिंग में हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, एटम्स को हम जब लेके चले उनको हम क्लोज लाए, दो एटम को क्लोज लाते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तब जाके मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल में फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो हमारे पास थे स्टार्टिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल्स और अब हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये भी आता है ना, 1-2 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देयर इज ए सिंपल 1 पॉइंट डिफरेंस जिसको आप बेसिक याद रखना है, वो क्या है भाई, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियाई। एक एटम में एक ही न्यूक्लियाई होता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं। Whereas in case of a molecule, अब आप जानते हैं मॉलिक्यूल बनेगा ही कम से कम when 2 atoms comes closer to each other. So in case of the molecular orbital, the electron present in the molecule, yeah, in the molecular orbital, they are under the influence of 2 or more than 2 nuclei. ठीक है, depending upon how many atoms are participating in the bond formation. तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कितने उसमें और न्यूक्लियाई होंगे, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि एटम कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने में। If this is diatomic molecule, there will be 2 atoms, there will be 2 nuclei. If this is triatomic molecule, there will be 3 atoms and there will be 3 nuclei. जितने होंगे 4 कर रहे होंगे तो 4 हो जाएंगे। क्लियर? मल्टी एटम वाला न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ना, SF6 एक S हो गया, F के 6 हो गए, 7 हो गया, है ना। तो ऐसे केस में जहां पे मल्टी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होंगे वहां पे उतने ही जितने उसमें एटम्स होंगे उनके उतने न्यूक्लियाई हो जाएंगे। क्लियर? तो उसके इतने न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस के अंडर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूक्लियाई, whereas in case of the molecule the electrons present in the molecule they are under the influence of more than 1 atom। ठीक है, so this is the difference। then अब इसमें भी हमने फिर कर दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, पहले सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस सो आप जानते ही हैं, +1 2 में भी पढ़े आपने। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दी, क्या भाई कैसे बनता है, इज फॉर्म्ड बाय दी हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग है, इफ दैट ओवरलैपिंग इज हेड ऑन मींस एक आमने सामने से ओवरलैपिंग हो रही है, देन दैट विल बी कैसी होगी भाई, सिग्मा बॉन्ड, दैट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड द ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज साइड वाइज, लाइक दिस, ये जो है दिस ओवरलैपिंग इज साइड वाइज, एक ऑर्बिटल का लोब और दूसरे ऑर्बिटल के लोब के साथ साइड से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, एस वो हेड ऑन है, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल इधर से, एक एस इधर से, स्फेरिकल, आपने हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई। क्लियर? सो ये डिफरेंस है कि हियर सिग्मा बॉन्ड में देयर इज हेड ऑन overlapping of the atomic orbitals, here there is head on a side-wise overlapping of the atomic orbitals. Second, this sigma bond is considered strong bond, this is big bond. Clear? Also because, और इसका रीजन भी रहता है, because थर्ड पॉइंट बन गया आपके लिए, ठीक है, in sigma bond the region of overlapping is maximum। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे ओवरलैपिंग का रीजन भी मैक्सिमम होता है। हियर साइड वाइज ओवरलैपिंग में रीजन ऑफ बीच में ये है, ठीक है, ओवरलैपिंग का पार्ट है, दैट इज लेस, दैट इज रीजन ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉल इन दिस पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, और बताया था मैंने, अभी आपको बताया था पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्यों बनते हैं वाले, जैसे ये वाले थे, बिकॉज ये क्या था, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में these are symmetrical about the molecular axis, they are symmetrical about the molecular axis, whereas they are not symmetrical about the molecular axis। तो इस टाइप में आपके 4-5 पॉइंट आप बना सकते हैं। ठीक है, so this is sigma bond and pi bond के बीच में डिफरेंस हो गया आपके। then next BMO and AMO, that is bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital।
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय दी क्या था, एडिशन ऑफ द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बताया अभी आपको है ना, दिस इज एडिशन ऑफ दी दो ऑर्बिटल आके आपस में प्लस यदि साइन बीच में है उनके तो दैट विल फॉर्म बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बट इफ देयर इज सब्ट्रैक्शन मींस बीच में माइनस साइन, ठीक है, इफ देयर इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देन देयर विल बी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। So these are formed by the addition of the overlap of atomic orbitals, these are formed by the subtraction of the overlap of atomic orbitals, पहला पार्ट है ना। इसमें अब जब हो जाएंगे ओवरलैप कर जाएंगे तो जाहिर है हमने क्या कहा, जब न्यूक्लियाई होते हैं ना, दो एटम मान लो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो ही एटम है तो दो ही न्यूक्लियाई हैं। सो इन केस ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ये जो दो मान लो ये मुट्ठी मैंने जो खोले हैं ये दो हमारे न्यूक्लियस है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से, इनके बीच में ये जो रीजन रहा बीच में मेरे चेहरे के बीच में देखिए ये वाला पोर्शन है ना, दो वाला, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाइज इज मैक्सिमम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन इज मैक्सिमम, means mostly electron remains between the two nuclei, तभी बॉन्ड होंगे ना भाई, क्योंकि न्यूक्लियाई होते हैं पॉजिटिव चार्ज, नहीं तो दोनों न्यूक्लियाई पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव रिपेल ईच अदर, बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डाले है ना। सो दीज टू न्यूक्लियाई दे आर अटैच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई। सो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज in this region between the two nuclei is maximum, whereas in anti-bonding molecular orbital the probability of finding electron in this region between the two nuclei is less, clear, तो यहाँ पे less होती है। थर्ड पॉइंट यही वाला, यहाँ पे there will be force of repulsion, ये वाला है ना, यहाँ से हमारे पास रहेगा पॉइंट थर्ड है the force of repulsion between the, क्या कहा हमने, इसी वजह से यहां एक पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा, द फोर्सेस इन दिस ऑर्बिटल टेंड टू ब्रिंग द टू न्यूक्लियाई क्लोजर टू ईच अदर। जाहिर है क्या होगा पहले केस में, क्योंकि उनके बीच में नेगेटिव चार्ज है, सो हियर द फोर्स इज प्रेजेंट, दे विल टेंड टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर, टू न्यूक्लियाई क्लोजर टू ईच अदर, वहां पे वो क्लोज लाना चाहेंगे। Whereas in case of the antibonding molecular orbital, the forces tends to repel, that is the two nuclei tends to remain as far apart as possible, तो वहां पे वो दूर रहना चाहेंगे। अच्छा, in case of the bonding molecular orbital it possesses less energy, lower energy than the isolated atoms। इनकी जो भाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है that is even less than the आइसोलेटेड मीन सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल भी ले लें उनसे भी लेस रहती है। Whereas in case of these antibonding molecular orbital, their energy is even more than the isolated atoms। उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे भी ज्यादा होती है इनके जो सिग्मा स्टार या यानी कि कहने का मतलब एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो दिस इज फोर्थ पॉइंट। तो ये हमारे पास इनके तीन टाइप के बॉन्ड भी हो गए, इनके आप डिस्कस करते रहे हैं ना, तीन के डिफरेंस किन किन के बीच में पूछा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एंड देन दी थर्ड इज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस। तो ये तीन डिफरेंस के भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। देन कंडीशन फॉर दी ओवरलैपिंग ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके लिए भी कंडीशन है भाई, ठीक है। ये जो हो रही है ओवरलैपिंग, जिससे मैंने कहा था आपको क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से ऑर्बिटल, क्या इनका ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग पॉसिबल है कि नहीं है, क्लियर। तो लेट्स सी दिस कंडीशन फॉर दी ओवरलैपिंग ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट कंडीशन इज क्या होना चाहिए भाई, एक तो इसमें जो जैसे हमने कहा था है ना, द रीजन ऑफ द ओवरलैपिंग मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है, कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग रीजन होगा उतना ही वो स्टेबल होगा। और एक जो फर्स्ट पॉइंट है उसको पहले यदि हम ले, द एनर्जी, द डिफरेंस
in the energies of the combining atomic orbitals should be less. ठीक है, कि जो ऑर्बिटल्स हम लेंगे उनके बीच में इतना एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि वो ओवरलैप ही ना कर पाए. क्लियर? सो दे मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी. डिफरेंस होगा, ठीक है, चलेगा, लेकिन इतना ना हो कि वो बहुत ज्यादा हो. जैसे हमने कहा क्या, ओनली द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग द सेम एनर्जी लेवल इज पॉसिबल. यानी कि if we are taking oneness orbital of the one atom, then it should combine, it should overlap with the oneness orbital of the other atom. ठीक है, oneness की oneness से ही overlapping होनी चाहिए, oneness की 2s से नहीं कराएंगे, because oneness की एनर्जी लेस होती है. 2s जब 2 लगेगा, एनर्जी लेवल यदि बढ़ गया तो that overlapping is not allowed. बस इतना याद रखिएगा ना, जब नंबर आगे का चेंज हो गया ऑर्बिटल के बीच में, यानी कि 1 और 2 आ गया, 3 आ गया, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2s with 2s. क्लियर? इस टाइप की ओवरलैपिंग इज अलाउड ओनली, दैट इज द ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग वेरी लेस डिफरेंस इन एनर्जीज, ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग. क्लियर? या दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. देन सेकंड पॉइंट जो भी कहा था मैंने, दूसरा पार्ट, द रीजन ऑफ द ओवरलैपिंग मस्ट बी एप्रोप्रिएट. ये भी कंडीशन है ना, कि क्या यदि ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स के बीच में, तो ये जो ए वाला, ये जो रीजन, ये जो हमने कहा है ना, ये वाला ओवरलैपिंग का जो रीजन है, ये ले लें ऐसे करके, तो ये भी इतना होना चाहिए कि ओवरलैपिंग हो पाए. इट शुड बी एप्रोप्रिएट, नॉट लेस देन. एक पर्टिकुलर ओवरलैपिंग जो रीजन है उससे स्मॉल भी नहीं होना चाहिए. तो इसकी भी ओवरलैपिंग रीजन भी इट शुड बी क्वाइट कंसिडरेबल. ठीक है, काफी हद तक ठीक ठाक होना चाहिए, कहने का मतलब. देन थर्ड पॉइंट, ये तो हो गया इसके बेस के ऊपर कि एक तो हो गया कि एनर्जी लेवल सेम होने चाहिए, दूसरा हो गया हमारे पास पॉइंट के उनके बीच में ओवरलैपिंग रीजन भी काफी होना चाहिए. द थर्ड इज द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, ये है मेन पॉइंट. इसके बेस पे ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे. क्लियर हुई? क्या बोला हमने कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड क्या होने चाहिए, नॉट हैव, शुड नॉट हैव शुड हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस. इनकी जो सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, दिस न्यूक्लियर एक्सिस जो हम कह रहे हैं. तो इसके अराउंड इसकी जो अभी कहा था, जैसे है ना, ये कैसे थे, जैसे मैंने कहा था, पहला केस लिया था हमने पाई 2px लिया, तो पाई 2px को जब हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया, इट्स सिमेट्री चेंजेस, है ना, यहां पे सिमेट्री में चेंज आ जाती है. तो पाई 2px एक का, one should combine with the pi 2x of the other. ये नहीं है कि pi 2px की pi 2py या ये वाला और कोई 2s से ही करा दिया, है ना, क्योंकि वहां पे the geometry will be not, ज्योमेट्री नहीं, the overlapping region में जो हमारा ओवरलैप बनेगा that is not symmetrical. देखते आपको एग्जांपल बताता हूं एक वाला इसमें से. फॉर एग्जांपल in this case, if we take the case of this is 2s orbital. ठीक है, this is 2s orbital when overlaps with the 2px. ज्यादा हो गया इस ओवरलैप. This is case 2s orbital is overlapping with the 2px orbital. अब 2s orbital में तो अंदर सारा का सारा पॉजिटिव ही चार्ज है. दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इनसाइड. ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकल. ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस. और लेकिन इसको देखें तो आप जानते हैं px में ऊपर के लोब में प्लस और नीचे की लोब में माइनस साइन. ठीक है,
तो क्या होगा, यानी कि अब आपने पूरे में नहीं जाना है, आपने जाना ओवरलैपिंग रीजन में, यानी कि इस ऑर्बिटल के ओवरलैप को चेक करें अपर लोब के, तो यहां पे इस रीजन का भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस एस का भी इसमें पॉजिटिव आएगा, मींस दिस इज प्लस प्लस ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड ओवरलैप ऑफ प्लस एंड प्लस। बट इफ यू गो टू द लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट में प्लस एस का तो प्लस ही था, लेकिन px टू px के जो लोअर लोब में है वो नेगेटिव चार्ज है, तो मीन दिस इज प्लस माइनस ओवरलैप। क्लियर? सो एज ए रिजल्ट दिस प्लस प्लस ओवरलैप कैंसिल दी प्लस माइनस ओवरलैप, इससे कैंसिल हो जाता है इफेक्ट इसके वाला। एज ए रिजल्ट सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स दे आर और सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दैट इज नॉट अलाउड। क्लियर? तो क्या हुआ, इट मीन्स 2s की 2px या 2s की 2py में भी सेम केस बनेगा, but not the same case with the 2pz, because 2pz orbital is this is 2s, this will be overlapping of 2pz, 2pz is taken symmetrical to the molecular axis, तो उसमें इस रीजन में प्लस इस रीजन में माइनस होगा इस लोब में, है ना। तो यहाँ पे प्लस प्लस ओवरलैप बनेगा, प्लस माइनस ओवरलैप बन ही नहीं पाएगा, इसलिए सच ओवरलैपिंग इज अलाउड। सो ओनली S की Z वाले के साथ अलाउड है, यानी कि 2s कैन ओवरलैप विद 2pz, बट 2s कैन नॉट ओवरलैप विद 2px एंड 2py। क्लियर? तो इसी तरह से, और फिर उनमें भी x वाले में 2px विद 2px, 2py विद 2py। क्लियर? तो इस टाइप की ओवरलैपिंग, या स्टार वालों में भी ऐसे रहेगा, 2px 2 वाला 2πx स्टार वाला यानी कि एंटीबॉन्डिंग वाला विद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py विद पाई स्टार 2py। क्लियर? तो इस टाइप की ओवरलैपिंग अलाउड रहेगी, तो ये भी याद रखे भाई। क्लियर? तो ये था हमारा इनकी ज्योमेट्रीज और इसके बारे में वाला। अब मैं थोड़ा सा एक आपकी ज्योमेट्री ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हमने पिछले उसमें भी कर रहे थे उन थ्योरीज में, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले हम, उसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले साइड में मैं बता देता हूं आपको बनना क्या चाहिए और होता क्या है ना, वो डिफरेंस बताता हूं कि क्या चेंज आई है। एक्चुअली होता है ऐसा, हमारे पास वी हैव दिस कार्बन 6 एंड कार्बन में 6 होते हुए है ना, और ऑक्सीजन में वी हैव 8, तो कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, सो देयर आर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो CO में कितने होंगे भाई? 14। तो हमने 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो होना चाहिए था क्या, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार ब्रैकेट में ले लो चाहे, सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा पाई 2px 2 पाई स्टार पाई 2py 2, कितना हो गया 8, देन सिग्मा 2p z2 6 4 10, देन 14 बचे, पाई स्टार 2px 2 एंड पाई स्टार 2py 2। तो यहां कंप्लीट 14 पे हमारे ये हो जाना चाहिए था, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में यदि हम चेक करें क्या बना हमारे पास में, देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे हम, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर शुड बी number of electrons in the bonding molecular orbital minus the number of electrons in the anti-bonding molecular orbital divided by 2. So bonding molecular orbital में हो गए 8 और anti-bonding molecular orbital में हो गए हमारे पास कितने भाई, 6 2 8 2 14, पाई स्टार 6 8 माइनस, यदि इसको हम अच्छा हाँ इसके कंसीडर आपका वो किए डिवीजन में, देयर विल बी सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s
2 4 6 10 2 12 2 14 तो एक एक आएगा इसमें ये वाला 2 2 4 2 6 4 4 8 4 12 2 14 हाँ सो दिस विल बी इसको भूल जाए वननेस वाला मैंने कहा था इसको काउंट ही ना करे जाए सो वी हैव कितने भाई वी हैव 6 - 4 क्यों आ रहा है इसके लिए बिल्कुल कहाँ हो रही है सिग्मा 2p जेड पे खत्म हो जाना चाहिए 4 अच्छा इसका अरे देखिए भाई ध्यान से देखिए मेरे से प्रॉब्लम हो थोड़ा सा मैं राइट करने में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शुड बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 तो आई तक नहीं जाएगा यही खत्म हो जाएगा सो देयर आर 8 and 6 14 हाँ तो इसको भूल जाए सो इफ वी चेक देयर विल बी 2 and 6 these are कितने भाई ये 8 इलेक्ट्रॉन इन दी बैलेंस सेल ऑफ दी in the bonding molecular orbitals and there are only 2 in this bonding molecular orbital 8 minus 2 divided by 2 means 6 divided by 2 that is 3 so CO में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 3 तो 3 होना चाहिए अब इसका जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड एक CO पॉजिटिव के लिए निकालते हैं CO पॉजिटिव के लिए देखे है ना CO पॉजिटिव मीन्स ऑक्सीजन में एक आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर देना है मीन्स 14 के लिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड में लिखा था हमने देयर विल बी 13 इलेक्ट्रॉन नाउ तो मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम होना था तो सिग्मा 2pz में से हम यदि इलेक्ट्रॉन कम करते हैं यहां पे इफ वी विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिग्मा 2pz देन क्या हो जाएगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है मींस हियर दिस विल बी 7 minus 2 दैट इज कितना बचा भाई 5/2 दैट इज बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 2.5 बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 2.5 दैट इज बॉन्ड ऑर्डर लेस हुआ है बॉन्ड ऑर्डर लेस हुआ मींस दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ CO और ऑक्सीजन एटम में जो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड की जो लेंथ हो बढ़ के जानी चाहिए यदि बॉन्ड वीक हुआ है 3 में से 2.5 पे आने का मतलब है बॉन्ड वीक हुआ है तो बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए बट जब इसको चेक किया गया तो क्या पाया गया भाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन CO पॉजिटिव इज 1.15 एर्मस्ट्रॉन्ग कितनी है द बॉन्ड लेंथ ऑफ इज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल ये जो कार्बन CO पॉजिटिव की 1.15 एर्मस्ट्रॉन्ग है हियर इज दैट ऑफ द नॉर्मल CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल था उसकी 1.12 थी तो इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग दी क्या बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी जैसे मैंने कहा इंक्रीज होनी चाहिए थी लेकिन हुआ उल्टा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की 1.15 थी और इस केस में 1 कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कैटाइन बना O पॉजिटिव बना उसकी 1.12 है एर्मस्ट्रॉन्ग तो उसमें और लेस हुई लेस होने का मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ठीक है ना तो पहले केस में नॉर्मल में 3 था यदि इसको 2.5 करें तो बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए थी लेकिन हुआ उल्टा कि नॉर्मल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.15 एर्मस्ट्रॉन्ग लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना इसका CO पॉजिटिव बनाया उसकी और कम हुई 1.12 एर्मस्ट्रॉन्ग तो इट मींस कि हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है that should not be removed from the bonding molecular orbital but it should be removed from the anti bonding molecular orbital it means हमारी एनर्जी लेवल डायग्राम में प्रॉब्लम है तो ये यहां से ना हटा के है ना इसमें से ना हटा के
ये कहां से, ये 2 ही रहे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ये जो स्टार वाला 2 स्टार सिग्मा स्टार 2s2 यहां से रिमूव हो, तब हमारे पास कैसा केस बनेगा 8 - 1 दैट इज 7/2 दैट इज नाउ द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज 3.5। क्लियर। तो ए एनर्जी लेवल डायग्राम में जब हम बनाते हैं तो हमारे पास यहां से चेंज आती है ए वाली हुई। क्या चेंज आती है एनर्जी लेवल डायग्राम में, दिस इज द चेंज कि हमारी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो अब ऐसी हो जाती है। क्या, इफ वी ब्रिंग दी दिस इज दिस साइड, दिस इज 2s ऑफ द कार्बन एटम, दिस इज 2p ऑफ द कार्बन एटम। तो एक एटम कार्बन का इन्वॉल्व है, ऐसे दूसरी तरफ दिस इज 2s ऑफ द ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज 2p ऑफ द ऑक्सीजन ऑर्बिटल एटम। तो जो देखिए यदि अब तो क्या केस है, उन दोनों में 2p के सामने 2p आता था जब सेम एटम्स होते थे, O2 ले ले N2 ले ले, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसके 2p की कार्बन के 2p की एनर्जी ये काफी ऊपर है और उसके ऑक्सीजन की 2p की एनर्जी लेस है। और ऐसा केस 2s में है, इसका 2s कार्बन का ऊपर है, उसका 2s नीचे डाउन है। रीजन इज ऑक्सीजन इज हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इवन फ्लोरीन दे आर कंसीडर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो उस वजह से इनकी एनर्जी भी लेस होती है इनके पास, इस वजह से यहां पे डिफरेंस आया भाई। तो क्या हुआ यहां पे डायग्राम में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनमें डिफरेंस पड़ा भाई। कैसा, यहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम ये देखिए नीचे, दिस इज यहां से स्टार्ट हुए सिग्मा 2s पाई 2px पाई 2py, यही रहता था ना ऐसे करके। क्लियर। ए था 2s का, तो 2s का सिग्मा 2s तो रहा नीचे ही वाला, लेकिन इसके सिग्मा स्टार 2s की जो वैल्यू है एनर्जी ई वो इतनी बढ़ जाती है कि जो 2p वाले के पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz ऑर्बिटल थे वो भी उससे नीचे आ जाते हैं सिग्मा स्टार 2s। तो इससे नीचे होगी इनकी एनर्जी वैल्यू। इस वजह से क्या, यदि इनकी एनर्जी लेस है तो जो इलेक्ट्रॉन जब हम विड्रॉल करेंगे किससे निकालेंगे, लोअर एनर्जी वाले से नहीं। जब हम वी टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, वी टेक आउट फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी हाई है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। जब ऐड करते हैं वी ऐड टू द लोअर एनर्जी लेवल, एडिंग के टाइम पे हम लोअर एनर्जी लेवल पे ऐड करते हैं। तो ये था केस भाई हमारे पास कि क्या केस कि यहां पर तो फील्ड थे नीचे वाले हमारे ऑर्बिटल 2 सभी में, लेकिन यहां पे भी 2 थे, है ना। ये था उसका कार्बन मोनोऑक्साइड का, इतने तक फीलिंग थी हमारे पास सिग्मा 2pz2 सिग्मा स्टार 2s2, ये तो बीच में था, लेकिन ये वाले फील्ड थे सिग्मा 2pz2 तक वाले। लेकिन एनर्जी जब हमने चेक की तो सिग्मा स्टार 2s की इस कार्बन मोनोऑक्साइड वाले केस में अपर थी। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के CO पॉजिटिव बनाया तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s से निकला, ना कि सिग्मा 2pz में से। तो इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ। ठीक है। सो दिस इज द रीजन गिवन फॉर द ज्योमेट्री। तो ये आपके तक ज्योमेट्रीज ऑफ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम्स एंड द ज्योमेट्री ऑफ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये थ्योरीज हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज या हाइब्रिडाइजेशन बेस के ऊपर हमारी ज्योमेट्रीज, तो ये हमने इस यूनिट का भी हमने कवर कर लिया भाई। थोड़ा जो एक दो आर्टिकल रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस रहा है ना, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू ऑल।